तो उधर पंजाब के 32 किसान संगठनों ने घर वापसी के संकेत दिए हैं। कल संयुक्त किसान मोर्चा की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है। देखिए क्या कुछ होता है। ਸਪਸ਼ਟ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਏ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ? ਸਪਸ਼ਟ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਜਿੱਤ ਸਮਝਦੇ ਆ ਵੀ 3 ਬਿੱਲ ਤੇ 2 ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਪਰਾਲੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਆ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਸੰਪੂਰਨ ਜਿੱਤ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹਦੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਲਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਟੈਨਿਓਰ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਦੇ ਦੇਣ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਾਡੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਤੋਮਰ ਜੀ ਤੋਂ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਪੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਜੀ ਤੋਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁਣ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਐਲਾਨ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਰਹਿ ਗਏ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਜਿਹੜੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨੇ ਉਹ ਰਹਿ ਗਏ ਔਰ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ? ਇੱਕ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਆ ਸਾਡੀ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਲੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਨੇ ਯੂਟੀ ਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਉਸਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਡਾਇਰੈਕਟ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਕੇਸ ਐਫਆਈਆਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਗੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਪੱਤਰ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜ ਰਹੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਰੂਪਰੇਖਾ ਕੀ ਰਹੇਗੀ? ਕੀ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ? ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗੀ? 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੇਟ ਐਂਡ ਵਾਚ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ। ਐਸਕੇਐਮ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪ੍ਰਕਾਰਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਝੁਕੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਪ ਬੰਦ ਨੇ ਜਾਂ ਜੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਵਿਚਾਰ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਐਸਕੇਐਮ 'ਚ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤਾਂ ਹੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਪਈ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੀਟਿੰਗ 1 ਤਰੀਕ ਦੀ ਐਸਕੇਐਮ ਸੱਦੀ ਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਐਸਕੇਐਮ 'ਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਆਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਜਾਊਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਇਹ 42 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਸਕੇਐਮ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ 11 ਵਾਰੀ ਦੌਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਰਹੀ ਆ। ਫੈਸਲੇ ਕੋਣ ਨਤੀਜੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ 42 ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਆਗੂ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਪਈ ਧੂੜ ਕਦੋਂ ਝੜ ਜਾਏਗੀ? ਕਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਦੋਂ ਆਉਣਾ? ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿੱਤ ਆਪਣੇ ਤਕਰੀਬਨ ਆਪਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬਸ ਐਸਕੇਐਮ ਦੀ ਇੱਕ ਮੋਹਰ ਲੱਗਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਐਸਕੇਐਮ ਦੀ ਮੋਹਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਐਸਕੇਐਮ ਦੀ ਕਾਲ ਮੰਨਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਐਸਕੇਐਮ ਦੀ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੱਖਾਂਗੇ। कैमरामैन संदीप दे नाल नपिंदर सिंह बराड़, न्यूज़ 18, सिंघू बॉर्डर, दिल्ली। कैप्टन अमरिंदर सिंह अचानक हरियाणा के सीएम मनोहर लाल से मुलाकात के लिए पहुंचे। कैप्टन ने इसे औपचारिक मुलाकात बताया। मुलाकात के बाद पत्रकारों से बातचीत में कैप्टन ने यह कहा कि किसान आंदोलन 4 दिसंबर को खत्म हो जाएगा। कई किसान नेता उनके संपर्क में हैं, उन्हें ये जानकारी मिली है। कैप्टन ने यह भी कहा है कि तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया गया है। इसके अलावा किसानों के 6-7 और मुद्दे हैं, उन पर भी केंद्र सरकार अब सहमत है। अब कोई मुद्दा नहीं बचा है। मुलाकात हो सकती है बीजेपी के साथ, केंद्रीय मंत्रियों के साथ। जब when I go to Delhi, I will certainly call on them. मुलाकात हो सकती है बीजेपी के साथ, केंद्रीय मंत्रियों के साथ। जब when I go to Delhi, I will certainly call. और अब बात कोरोना की करते हैं। कोरोना के न्यू वेरिएंट ओमिक्रॉन ने मुश्किलें बढ़ा दी है, टेंशन बढ़ा दी है। साउथ अफ्रीका से चंडीगढ़ लौटा परिवार कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। फिलहाल कोरोना के न्यू वेरिएंट ओमिक्रॉन की इसमें किसी तरीके की कोई पुष्टि नहीं की गई है। पति, पत्नी और नौकरानी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आपको बता दें कि चंडीगढ़ के सेक्टर 36 में ये परिवार रहता है। 21 नवंबर को ही साउथ अफ्रीका से परिवार की वापसी हुई है। सभी का सेक्टर 32 के अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से टेंशन बढ़ गई है। कोरोना के न्यू वेरिएंट को लेकर, ओमिक्रॉन को लेकर लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही है। साउथ अफ्रीका से चंडीगढ़ लौटा परिवार कोरोना पॉजिटिव पाया गया। हालांकि न्यू वेरिएंट ओमिक्रॉन की पुष्टि इस परिवार में नहीं हुई है। परिवार में पति, पत्नी और नौकरानी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सेक्टर 32 के अस्पताल में इनका इलाज चल रहा है। 21 नवंबर को ही साउथ अफ्रीका से परिवार वापस लौटा है।
तो एक तरफ कोरोना के जो केस है पॉजिटिव पाए गए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ओमिक्रॉन को लेकर पंजाब सरकार अब सतर्क हो गई है। डिप्टी सीएम ओपी सोनी ने एक अहम बैठक की है। कोरोना को लेकर स्वास्थ्य अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश इस बैठक में दिए गए हैं। विदेशों से लौटने वालों पर विशेष तौर पर निगरानी रखने की बात कही गई है। निर्देश जारी किए गए हैं। इसके साथ ही प्रभावित देशों से लौट रहे लोगों पर भी निगरानी रखी जा रही है। संभावित तीसरी लहर से निपटने की तैयारी की जा रही है। कोरोना के न्यू वेरिएंट ओमिक्रॉन पर अब अलर्ट जारी हो गया है और इसे लेकर पंजाब में भी जो है सतर्कता दिखाई दे रही है। डिप्टी सीएम ओपी सोनी ने एक अहम बैठक की है जिसमें स्वास्थ्य अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। और खबर हरियाणा से है। हरियाणा के नीलोखेड़ी के रहने वाले अमनदीप के हत्यारों का अब पुलिस ने पता लगा लिया है। पुलिस और परिवार जिसे बाहर ढूंढ रहे थे वो घर का ही सदस्य निकला और वो कोई और नहीं बल्कि अमनदीप का ही जीवन साथी है। जी हां, अमनदीप की पत्नी रविंदर कौर ने ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करवाई है। सीआईए ने अमनदीप की पत्नी के अलावा अंबाला के 3 युवकों को भी गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि बीती 24 नवंबर को अमनदीप को मौत के घाट उतारा गया था। शुरू कर दिया, सारी रात ढूंढा, नहीं मिला। जब सुबह पता चला भी खेत में एक आदमी गया, वहाँ हमें उनकी डेड बॉडी मिली। तो जब हमने वहाँ देखा तो हमें इसके साथ कोई किसी का कंसर्न नहीं था, लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, इसको मारा किसने है ये हमें पता लगाना था भी क्यों हुआ है। ये नहीं पता था। आज से हमारे घर में ही ये चोर बैठा था और हम बाहर ढूंढ। देखिए, दिनांक 25 नवंबर को तरावड़ी थाना के क्षेत्र में एक युवक का शव मिला था जिसके बाद में पहचान अमनदीप वासी नीलोखेड़ी के तौर पे हुई थी। उसी दिन ही हमने परिजनों के बयान पर धारा 302, 120 भी आईपीसी के तहत तरावड़ी थाने में मुकदमा दर्ज किया था और मामले की जांच आरंभ की गई थी। मामले की जांच के दौरान हमने हर्षदीप उर्फ सनी जो कि अंबाला का रहने वाला है और उसका एक साथी कुणाल वो भी अंबाला का रहने वाला है एवं अमनदीप की पत्नी को गिरफ्तार किया है। इनको आज माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा और मामले की आगे की जाँच की जाएगी। खबर फरीदाबाद से है। मैट्रिमोनियल साइट पर लोगों को शादी का झांसा देकर ठगने वाले गिरोह का पुलिस ने यहां पर भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने एक महिला को उसके 3 साथियों के साथ गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि मैट्रिमोनियल साइट पर फर्जी प्रोफाइल बनाकर महिला खुद को विदेशी बताती थी और शादी के लिए हामी भर लेती थी। इसके बाद लाखों रुपए के गिफ्ट भेजने का लालच देती थी। ये गिफ्ट एयरपोर्ट पर कस्टम में फंसे होने की बात कहकर लोगों से हड़पे जाते थे। इस गिरोह ने हाल ही में फरीदाबाद एनआईटी निवासी अमरीक सिंह को भी झांसे में लेकर 5,78,000 रुपए हड़प लिए थे। अमरीक ने लड़की की बातों में आकर उनके फर्जी खाते में पैसे ट्रांसफर कर दिए। जब अमरीक को फर्जीवाड़े का पता चला तो उसने इसकी शिकायत पुलिस में दर्ज करवाई, जिसके बाद आरोपी महिला और उसके साथियों को गिरफ्तार किया गया। मैट्रिमोनियल साइट पे फ्रॉड से संबंधित है, जिसमें एक मैट्रिमोनियल साइट है संगमा मैट्रिमोनी, जिस पर हमारा जो कंप्लेनेंट है उसने अपना प्रोफाइल डाला हुआ था। वहाँ उसकी एक औरत से बात होनी शुरू होती है। फिर उनसे बात करते करते आपस में शादी के लिए बात आगे बढ़ती है और वो कहते हैं कि भाई हम आपको देखने के लिए इंडिया आएंगे। जो औरत है अपने आप को नीदरलैंड एम्स्टर्डम की बताती है। उसके बाद वो एक डेट तय करते हैं इंडिया आने के लिए। जिस दिन वो इंडिया आते हैं उस दिन जो व्यक्ति हमारा कंप्लेनेंट है उसके पास इमिग्रेशन डिपार्टमेंट एयरपोर्ट से फ़ोन आता है कि भाई ये जो 2 व्यक्ति आपसे मिलने के लिए आ रहे थे ये एयरपोर्ट पर डिटेन किए गए हैं। इसी तरह उन्होंने बातों में लगाकर काफ़ी सारी परेशानियां बताकर इनसे 5,78,000 रुपये ठग लिए। उसके पश्चात हमारी टीम ने टेक्निकल वर्क करते हुए इनको ढूंढ निकाला और उसमें 4 आदमियों को अरेस्ट किया, जिनमें से 3 आदमी जुडिशियल भेजे जा चुके हैं और एक अभी हमारे पास 7 दिन के रिमांड पर है। हिमाचल प्रदेश सरकार के खिलाफ भारतीय मजदूर संघ शिमला ने मोर्चा खोल दिया है। अपनी मांगों को लेकर सोमवार को प्रदेश भर से बीएमएस के सैकड़ों कार्यकर्ता शिमला के चौड़ा मैदान में इकट्ठे हुए और जमकर प्रदेश सरकार के खिलाफ यहां पर प्रदर्शन किया गया। बड़ी संख्या में मजदूर संघ के बैनर तले सैकड़ों कार्यकर्ता हिमाचल प्रदेश सचिवालय के मुख्य गेट पर पहुंच गए। सचिवालय गेट को बंद कर दिया गया, जिसके कारण कार्ट रोड पर यातायात बंद हो गया। सैकड़ों कार्यकर्ता सड़कों पर बैठ गए। कहना चाहूंगा कि मजदूरों से मत टकराओ।
पुलिस के माध्यम से मजदूरों से टकराओगे तो आज तक मजदूरों से टकराने के बाद किसी का भला नहीं हुआ। मेरी ये मांग है सरकार से कि ऐसे पुलिस अधिकारी के विरुद्ध में बाकायदा मुकदमा दर्ज करके इसकी जांच होनी चाहिए और जो उचित कानूनी कार्रवाई बनती है वो करनी चाहिए। लाठीचार्ज किया गया या बल प्रयोग किया गया, क्या किया? मुख्य में ये तो सीधा लाठीचार्ज नहीं बल प्रयोग है, क्योंकि सिर पर लाठी मारना लाठीचार्ज का भी नियम है, वो घुटने से नीचे मारी जाती है, किंतु सीधी लाठी चलाना और महिला कर्मचारियों पर पुरुष के द्वारा लाठी का हमला करना ये हमला है, ये बल प्रयोग है। इसलिए इसकी जांच होनी चाहिए और मुकदमा करके उचित कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।